Let's be thankful for our friends and family and grateful for the air that we breathe and appreciate everything that we have today. Let's be generous to anyone who has less than us. It's good to be compassionate, 'cause ever since the day you were born, yeah, we've got a lot to be thankful for. Yeah, we've got a lot to be thankful for. Everybody gets the land, and everybody. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sarita ji. Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. आप कहाँ हैं सुनीता जी? बहुत ठंड हो गई वहाँ। बहुत ठंड है। कहाँ है आप? ये बंगाओं के पास में है, बिजनी बोल के। हाँ, बिजनी गई हुई हूँ। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। आप कभी गए हो? हाँ हाँ हाँ, बिजनी। हमारे यहाँ फैन चल रहा है। सच्ची में? हाँ, बॉम्बे। Yes. माय गुडनेस। यहाँ तो बहुत ठंड है आज। हाँ, आज यहाँ पे असम यहाँ साइड पे में it's very pleasant. It's pleasant मतलब, but फैन तो ऑन रखना पड़ता है। हम लोग के फैन तो बंद हुए 1.5 महीना हो गया। Oh. Good afternoon. Good afternoon. आफ्टरनून। आप लोग को देख के ऐसे खुश हो जाता है मन। गर्मी आ जाती है ना, स्टेशन में आते गर्मी आ जाती है। हाँ। Shillong is also very cold today. Nice, pleasant. यहाँ तो आज बाहर पूरा कुहासा है. Flights have been pretty delayed today. अभी तो बैंगलोर भी हिल स्टेशन जैसा हो गया मैम। एनी टाइम हाँ। बारिश, टाइम मौसम इतना अच्छा रहता है, हिल स्टेशन बढ़िया. जैसा है। Oh, pleasant है. Bangalore is pleasant, no? Even in winters. That's nice. Dr. Aarti, where are you? You are also looking nice and warm. Hello, ma'am. I'm at Panchkula, Chandigarh. Oh, उधर तो अच्छी ठंड होगी. बुरी वाली. Very nice. Nice cold. Nice, nice. And रमा जी, आप कहाँ हैं? मैं कच्छ, गांधीधाम, गुजरात। ओह, तो वहां तो ठंड पड़ती नहीं है। हाँ, किंतु इस बार 2 दिन से बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। एकदम हड्डियों में चुभ रही है ठंड। आप लोग को आदत नहीं है ना, आप लोग को थोड़ी भी ज्यादा लग रही होगी। नहीं, मैं पहले आसाम में थी, डिब्रूगढ़ थी। अच्छा। तो मेरे को वैसे ठंड तो वहां बहुत होती थी डिब्रूगढ़ में। हाँ, डिब्रूगढ़ में तो अच्छी ठंड होती है। हाँ, तो शालिनी है ना डिब्रूगढ़ से? हाँ हाँ, तिनसुकिया, पानी तोला से। तो यहाँ इस बार बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मेरे को मेरी सिस्टर उमा देवड़ा ने ज्वाइन करवाया है। Oh, no wonder you look so similar to her, right? Same smile. कहाँ पर ठंड है मैम? And मुक्ति जी, आप कहाँ से हैं? मैं अंबाला से मैम। यहाँ भी बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा अच्छी ठंड है। ठंड होगी। डॉक्टर आरती के पास हो गए आप। प्रियंका जी, आप कलकत्ता? नो मैम, लखनऊ। Oh wow, really? I mean, no two people are from the same place. अभी जिनके videos on है, that's wonderful. Except both of us. We Oh, all yes, belong I to forgot. I forgot. Sheetal ji, I keep coming to Bangalore to my mother's place. Let's catch up this time, come traveling to Bangalore. Sure. Yeah, sure. Where is the mother put up, ma'am? HSR layout. Okay, okay. Bangalore, Where are I you think it's very, the distances are great. Actually, the traffic is a little challenging here. Where are you put up, Sheetal? Wilson Garden, ma'am. Oh, we were, when I used to live in, before my shadi, I used to be in Double Road, Shanti Nagar, just next to Wilson Garden. That's very close by. Yes.
we'll catch up. However, Yeah, distance, sure. you know, maybe a challenge. Yes. Great, nice. I mean, आज कभी लगता नहीं इतने दिन पूछे ही नहीं कौन कहाँ से है. So it was such a nice variety. Okay, let's catch up. Let's start with our affirmations. Anyone else would like to lead the affirmations? 2-3 affirmations. Anybody wants to lead? You're most welcome. Try it. Power से कौन बोल सकता है? Come on. You can lead us. Anybody. 2-3 simple affirmations first day से कर रहे हैं अपने. सोचिए मत. Just say yes. And जब कूद गए तो करना ही पड़ेगा. हम लोग सेशंस भी ऐसे ही करते हैं. हम लोग कूद जाते हैं and then करना पड़ता है. Okay. Nobody wants to. ठीक है. चलिए. Let's start. हाँ. कौन बोले? मैं मुक्ति. मुक्ति. You want to lead? चलिए 3 affirmation हम लोग सब मैम 2 याद है. Okay. जो आपको याद हो. Yes, everybody will please follow. Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा loudly बोलना पड़ेगा. आपकी आवाज और धीरे आ रही. Please keep silence. I am a powerful soul. I am a powerful soul. I am a creator of my life. I am the creator of my life. I am peaceful soul. I am a peaceful soul. Let's repeat them. I am a powerful soul. I am a powerful. Yes, Mukti ji, you can repeat them. Yes, ma'am. Okay. I am a creator of my life. I am the creator of my life. I am peaceful soul. I am a peaceful soul. I am a powerful soul. I am a powerful soul. Just feel it. Yes. अभी हम प्रेयर करेंगे. You can mute yourselves. हे प्रभु, हम आपके सामने बैठे हैं. बहुत नमन दिल, नमन मन, नमन हृदय से आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप हमें इस रास्ते पे लेके आए हैं. आप हमें आप पे वो विश्वास रहे, वो फेथ रहे कि आप जहां हमें लेके जाते हैं, जो काम जिस तरह कराते हैं वो ही सही है. हमें बहुत बार लगता है ना, जिंदगी हम चला रहे हैं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये कैसे होगा. हमें ये शक्ति दे कि हम हमारा जीवन आप पे छोड़ दे. आप हमें इस रास्ते पे लाए हैं. आप हर राह हमारे लिए खोल देते हैं. हर मुश्किल आप पे छोड़ने की शक्ति दे हमें कि आप ही राह दिखाएंगे. आज जो हम सीखने जा रहे हैं, अब तो लेवल्स अप हो रहे हैं. उस लेवल अप करने की शक्ति दे हमें, समझने की शक्ति दे ओपन माइंड से, जैसे हमें कुछ नहीं पता है. आज तो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसमें अच्छा से समझ के अमल करने की हमें शक्ति दे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. Has somebody typed that in our WhatsApp group that we are ready to start our session? I'll do it, ma'am. Thank you. शीतल जी, आप रेडी हो पढ़ने के लिए? She's posting on the WhatsApp. Thank you, Mukti ji. Beautifully done. बहुत अच्छा लगा. Very nice affirmations. And actual में अंदर तक feel हो रहा था. Thank you so much. Very nice. Thank you so much, ma'am. शीतल जी, आप रेडी हो? Yes, ma'am. Okay.
Day 18, the magical to-do list. So the moment हम ये देख रहे हैं कि जादुई कार्य सूची हमारी, तो हमें लग रहा होगा कि हम ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं व्हेन वी वर गिविंग ग्रैटिट्यूड, जो हमारा दिन का शेड्यूल था उसके लिए, जब हम अपना विच चैप्टर वाज दिस, आई थिंक इट वाज द 14th चैप्टर और समथिंग, जब हम अपने दिन के पूरे एक एक जो हमें पता है कि आज दिन में क्या होने वाला उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे थे. बट दिस इज जस्ट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट चैप्टर दैट वाज टॉकिंग अबाउट एक दिन का पूरा काम. और ये हमारा टू डू लिस्ट है, जो हमारे पेंडिंग काम है, जो हमको नहीं समझ में आ रहे हैं काम, या फिर बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं कि ये काम करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, या फिर एक मन में झिझक है, फॉर दैट मैटर एक डांस ही सीखना है, फिर लगता है कि इस एज में आके डांस सीखना, दैट कैन गो टू योर टू डू लिस्ट. कोई हॉबी पिक करना, वॉट एवर मे बी. एंड ये पिक्चर में आप देखोगे ना, इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर वेर बलून्स के साथ एक कागज, ये कागज आप देख रहे हो ना, ये बलून के साथ रांडा बर्न ने एक बलून के साथ उसको टांग दिया है, एंड शी स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन इट, एंड ये यूनिवर्स की तरफ गैस बलून जैसे कैसे ऊपर उड़ा के ले जाता है सब कुछ, तो ये यूनिवर्स की तरफ आपके टू डू लिस्ट को लेके जाएगा, विच विल मेक इट वेरी पावरफुल फॉर मैनिफेस्टेशन. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1862 to 1960, novelist and poet. संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है. Isn't it beautiful? जो हमारी बुद्धि का पैना, हमारा शार्पनेस, हमारे इंटेलेक्चुअल पावर, हमारे सोचने समझने की शक्ति को और बढ़ने का वेट कर रही है. जब तक साइंटिफिक जो आज तक डिस्कवरीज हुए हैं, उनके होने से पहले इट वाज इन द इनविजिबल रेल्म ना, वो कहीं किसी को पता नहीं था. एक जब हमारा मोबाइल, जब तब तक मोबाइल फोन का निजात नहीं हुआ था, वो एक अदृश्य जीव, एक अदृश्य रेलम में था, एक अदृश्य जगत में था, लेकिन था. जब हमारी बुद्धि शार्प हुई, जब हम सोचने समझने की, इन्वेंशन करने की, विजुअलाइज करने की हमारी शक्ति शार्प हुई, तो उसको किसी न किसी ने सोचा होगा, किसी न किसी ने उनको उस पर अपनी बुद्धि लगाई होगी, एंड देन इट बिकेम, धीरे धीरे एक प्रोटोटाइप बना और वो एक रियलिटी बन गई आज के डेट में. जस्ट नॉट phone, it goes for anything and everything in our life. हमारा जो बॉडी का प्रणाली है, जो हमारे अंदर फंक्शंस चल रहे होते हैं, जो मशीनरी है हमारे अंदर, डू वी नो वो किस तरीके से चलती है, क्या बेसिस पे चलती है. जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होते जाते हैं, जो ये मेडिसिन वर्ल्ड में जितनी प्रोग्रेस हो रही है, तब हमें पता चलता है अभी तक भी साइंटिस्ट पूरे शरीर में होने वाली इंटरलिंक्ड जो प्रोसेस है उसका पता नहीं लगा पाए हैं. How each organ functions, how each organs are interrelated and interconnected, and कहाँ से क्या चीज किसको जाके अफेक्ट करता है, 100% आज के दिन भी साइंटिस्ट को नहीं पता है. So it is, there is so much more in this universe. हमारी समझ से परे, हमारे समझ से ऊपर बहुत कुछ है. अगर हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कोई भी चीज, तो वो यूनिवर्स में है. उसे कैसे मैनिफेस्ट करना है, उसे कैसे हम रियलिटी बना सकते हैं, दैट इज अप टू हाउ मच इंटेलेक्चुअली वी कैन ग्रो, कितना पैनापन हम अपनी बुद्धि में ला सकते हैं. एंड इट इज देयर विथ एवरीबडी. This sharpness, this ये नियामत सबके पास है. It is just that we need to discover it for ourselves. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more.
So it can do far more magical things for you. Have you ever realized when we are leaning on one of our bestest of friend, जिसको हम समझते हैं ना कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं वो आपका फायदा उठाना शुरू कर देता है. एट टाइम्स आपसे अनड्यू कभी एडवांटेज लेने की कोशिश करता है बिकॉज यू आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट फ्रेंड. लेकिन ग्रैटिट्यूड एक ऐसा फ्रेंड है, इट्स दैट बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड है जिसके ऊपर आप जितना लीन करेंगे, जितना उस पर डिपेंडेंट होंगे, ग्रैटिट्यूड को जितना काम में लोगे, जितना उसका इस्तेमाल करोगे, दैट्स हाउ मोर मैजिकल आवर लाइफ इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी. इट इज फॉर एवर देयर रेडी टू हेल्प अस टू गेट आवर सॉल्यूशंस, टू गेट आवर मन चाहा जो हमारी जिंदगी है उसको लाने के लिए वो हमारे लिए हमेशा तैयार है. So gratitude is one thing. The more we rely on, the more we lean on gratitude, the more we get back. Every day, there are little life problems that come up and they need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, or you're at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you're feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do. Just 1 second. We will just stop here once. Yes, ma'am. Just we will start with this magical practice next time. Okay. Okay. So what is she saying here? लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, जिस पर प्रॉब्लम का आज हमें लगता है हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, वी डोंट नो कहाँ से वो सॉल्यूशन आएगा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एक रे ऑफ होप जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रही है. चाहे वो एक छोटी सी चीज है कि हमको हमारा हेयर ड्रेसर, जब भी हम सैलून जाते हैं हमें वो हमारे कटे हुए बाल पसंद ही नहीं आते. वी वांट द परफेक्ट हेयर ड्रेसर फॉर अस. एक डॉक्टर मे बी आपका एक नॉर्मल फिजिशियन है जो डे टू डे लाइफ में आपको आप समझ ही नहीं पाते हो किस फिजिशियन के पास जाएं जो आपको परफेक्ट सोल्यूशन दे दे आपके हेल्थ इश्यूज के लिए. या फिर आपके बच्चे के साथ आपका थोड़ा सा खटपट चल रहा है, यू रियली डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप. एंड इफ देयर इज मे बी देयर इज सम आपको लैक ऑफ टाइम फील होता है, 24 घंटे भी दिन के आपको बहुत कम लगते हैं, इतना सारा काम बैक टू बैक, चारों तरफ से लोग आपको सिर्फ काम ही काम पकड़ाते हैं, यू रियली डोंट नो हाउ टू फिट इन ऑल दैट वर्क. एंड सारा काम इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं कि आप कुछ काम छोड़ सकते हो. या हाउस हेल्प नहीं मिल रहा है आपको, आपका मन चाहा हाउस हेल्प नहीं मिल रहा है. बिजनेस में आपको मे बी शायद आपके जो स्टाफ है वो आपके मन चाहे नहीं है, या फिर मे बी देयर इज सम डेट इन योर बिजनेस which you there is no, you don't know how to get rid of that debt. जो भी आपका प्रॉब्लम है, चाहे एक छोटा सा प्लम्बर आपको चाहिए जो आपका नल फिक्स करके चले जाए, whatever may be the things, if we want जैसे परफेक्ट पेट, बेबी सिटर, वॉट एवर, या फिर आपको एक ऐसा अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ गया हो ऑफिस में, घर पे, या फिर एनी गिवन कहीं और पे भी जहाँ कोई आपसे कोई अनवांटेड आपसे फेवर मांग रहा हो, some favor which you cannot return, some favor which you really don't want to do, और आपको पता नहीं कि आप कैसे ना बोलो, आपकी नौकरी जा सकती है, and you really want the job,
If these are the situations and you really don't know what to do, now we will read the practices what we really need to do in all these situations. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems. When you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you, you will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that's not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. So when we are reading this line, when you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. ये कोई मूवी का कोई डायलॉग याद दिलाता है? ये ओम शांति ओम की मूवी का शाहरुख खान का डायलॉग याद दिलाता है ना? सारी कायनात समथिंग लाइक दैट। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, आपको अगर बहुत पावरफुली चाहिए, कुछ बहुत ज्यादा चाहिए, आपको ये चाहिए ही चाहिए। आपका ये टू डू लिस्ट आप जब बना लोगे छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए, या जो भी आपकी समस्या है वो उसको आप अगर उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यूनिवर्स किस तरीके से सारे आपके जो मिसिंग पीसेस, पजल के पीसेस होते हैं ना, जो अलग अलग शायद बिखरे हुए हैं और आज जिंदगी बहुत उलझी हुई लग रही है बिकॉज हमें सही पीस नहीं मिल रहा, सही राह नहीं मिल रहा। सो हाउ विल द यूनिवर्स रीअरेंज एवरीथिंग? वो हमारे लिए कहाँ से किसका रस्सी इधर, कठपुतली में जैसे पपेट्स के लिए हम रस्सी पुल करते हैं और वो हमें हमारे अकॉर्डिंग डांस करते हैं, सिमिलरली यूनिवर्स इज गोइंग टू मेक इट हैपन फॉर अस नो मैटर व्हाट। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं ना, आप जस्ट मेक योर ड्रीम लिस्ट, आप बताओ आपको चाहिए क्या, एंड फिर आप ग्रैटिट्यूड में रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और ग्रैटिट्यूड का जो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें रहिए, सारी चीज फॉलो कीजिए। बी अबव द लाइन, डू नॉट कंप्लेन, बी इन ग्रैटिट्यूड फॉर टुडे, व्हाट एवर यू हैव, आज के दिन के लिए। इस सारी प्रैक्टिसेस में अगर आप रहोगे, यू डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू मैजिकली हैपन फॉर यू। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you. And you're giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. So this is our assignment today. आज हमें हर एक एरिया में जहां पर भी छोटी सी छोटी चीज जिसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, we really don't know what may be the solution और किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, बड़ी से बड़ी सिचुएशन हो या छोटी से छोटी सिचुएशन हो, स्टार्ट राइटिंग इट। आप एक लंबी सी लिस्ट बना लीजिए, चाहे जितनी भी लंबी हो, लेकिन आज के लिए हमें 3 उन चीजों में से 3 ऐसी चीज को चूज करना है जिसके लिए वी रियली वांट आवर सॉल्यूशंस।
जो हमें रिजॉल्व चाहिए, जो हमें चाहिए ही चाहिए, ऐसी 3 चीजों को उसमें आप लिखिए। फर्स्ट चूज कर लीजिए, मतलब काफी सारे लिखे हुए होंगे, उसमें से टॉप 3 आप चूज कर लीजिए एंड वन बाय वन एट अ टाइम, 1 मिनट के लिए, एटलीस्ट फॉर 1 मिनट, आप उसका क्या सोल्यूशन चाहिए, क्या आपको जैसे वो मिल गया हो। इमेजिन कीजिए कि कायनात सारे सर्कमस्टेंसेस को, सब लोगों को, हर सिचुएशन को आपके लिए मोल्ड कर रही है। आपका काम हो गया बिकॉज यूनिवर्स इज देयर बिहाइंड यू एंड एवरीथिंग इज रिजॉल्व। आपको जैसा चाहा था, आपका जो एंड रिजल्ट था, आपको अगर सपोज सोल्यूशन नहीं पता है, आपको पता है ना कि आपको एक प्लम्बर चाहिए, यू डोंट नो विच प्लम्बर, लेकिन प्लम्बर आ गया, आपका नल फिक्स हो गया, आपका लीकेज फिक्स हो गया, द डैम विच वाज लीकेज से जो डैम हो रहा था वो डैम रेक्टिफाई हो गया। दिस इज व्हाट वी वांटेड ना, एंड रिजल्ट। तो वो यूनिवर्स कैसे करेगी, वो यूनिवर्स पे छोड़ के आप यूनिवर्स को बस थैंक यू बोलिए कि आपने मेरे प्लम्बर को मेरे पास पहुंचाने के लिए इतने सारे काम मेरे जो पेंडिंग थे प्लम्बर के साथ, वो कंप्लीट करने के लिए आपका थैंक यू। एंड 1 मिनट तक आपका जो एंड रिजल्ट है, आपका वो काम हो गया है, उसके साथ आप 1 मिनट तक विजुअलाइजेशन। अगेन हमने कोर्ट में समझा था ना कि अगर हमने अपना विट्स, अपनी इंटेलेक्चुअल, अपना दिमाग शार्प किया, ओनली व्हेन वी हैव शार्प माइंड, व्हेन वी आर अटेंटिव, व्हेन वी आर अलर्ट, तभी हम विजुअलाइज कर पाएंगे ना। अगर हम स्लाउच करेंगे, बहुत ही थके हारे टाइप के रहेंगे, तो वेयर हाउ विल वी विजुअलाइज, वी विल बी लेथार्जिक। सो स्पेंड 1 मिनट उस चीज का हो जाने के लिए ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। एंड सेम थिंग हम लोग को 3, अपने जो 3 लिस्ट में हमने आइटम्स को पकड़े हैं, तीनों के साथ हमको 1 बाय 1 1 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करना है। एंड जस्ट पुटिंग थिंग्स ऑन द मैजिक टू डू लिस्ट में उसको पावर दे देता है, जस्ट बिकॉज वो वहां पे है आपका। राइटिंग एनीथिंग गिव्स इट मोर पावर, ये हमने अब तक समझ लिया था ना। सो राइटिंग व्हाट यू वांट इन द टू डू लिस्ट गिव्स इट मोर पावर, सिंपली पुटिंग इट देयर। Remember, the law of attraction says, like attract like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need in your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. This is very important, हाँ, you have to be magnet to the solution. कई सिचुएशन में कई बार एक, अगर घर पे भी कोई एक ऐसी सिचुएशन आई हो, किसी 2 जनों के बीच में टिफ चल रही है, कोई बाताबाती चल रही है, हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग, इंस्टेड ऑफ कि दोनों जन के बीच में वो सुलह हो जाए, हम और आग में घी डाल देते हैं। एट टाइम्स डोंट वी डू दैट? सो वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर आप हमेशा हर सिचुएशन में अगर आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनोगे ना, if you are not creating problem, if you are part of the solution, you will realize that solutions come to you आराम से। and when we are grateful for the solution coming to us, वो सिचुएशन हमारे लिए रिजॉल्व हो गया, उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल है तो वी विल अट्रैक्ट ऑल द सिचुएशंस बीइंग रिजॉल्व्ड। अगर हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम्स पे, तो नाउ वी नो व्हाट वी विल गेट। जितना हम फोकस प्रॉब्लम्स पे करेंगे, हमें उतनी ही और ज्यादा प्रॉब्लम दिखने लगेगी। अगर हम सॉल्यूशंस पे करेंगे फोकस, प्रॉब्लम्स होती हुई भी वी विल नॉट, वो इतनी बड़ी नहीं दिखेगी। somehow we will find solutions to it and we will move forward and we will attract more situations when we have more solutions. We have people, maybe we'll get some person who will give us some hint, या कोई ऐसा हमें इंस्टेंस मिल जाएगा, कोई मूवी देख लेंगे, कहीं ना कहीं से हम सोल्यूशन को अट्रैक्ट कर लेंगे। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet.
and she had no idea where she might have lost it or even if it has been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had a wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had a wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. So this is such a, I mean, इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि आप सोल्यूशन को की तरफ सोचो, ना कि प्रॉब्लम की तरफ कंसंट्रेट करो, टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये कितना पावरफुल प्रैक्टिस है. किसी का वॉलेट गुम जाना, वो बोल रही है मेरा वॉलेट गुम गया, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ गुमा, एंड वो भी नेक्स्ट डे उनको पता चला कि उनके पास वॉलेट नहीं है, जबकि गुमे हुए रात बीत चुकी थी. And she didn't know where it was, whether she has left it somewhere, कहीं छोड़ के आई है या किसी ने चुरा लिया है, टैक्सी में है, रेस्टोरेंट में छोड़ी है, कहाँ है उनको नहीं पता था. उन्होंने रेस्टोरेंट वाले को कॉल कर दिया, जिस टैक्सी से ट्रैवल करी थी उनको कॉल कर दिया, लोकल पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन लिखवा दी कि मेरा वॉलेट गुम गया है, एंड घर के आसपास सब स्ट्रीट्स पे उन्होंने ढूंढ लिया एंड उनको वॉलेट नहीं मिला. Then उनका वॉलेट में हर कुछ था, क्रेडिट कार्ड था, ड्राइवर्स लाइसेंस था, ड्राइवर्स लाइसेंस के कारण नाम था उनका वॉलेट में, बट अपार्ट फ्रॉम हर नेम उनका कांटेक्ट, कहीं पे उनको कोई फोन करके पूछ ले या फिर उनका कांटेक्ट एड्रेस, क्योंकि वो ओवरसीज रही हुई थी इसलिए उनका वहां का एड्रेस कुछ नहीं था. सो देयर वाज नो वे कि सामने वाले को किसी को अगर वॉलेट मिल भी जाता है तो वो उनको कांटेक्ट कर पाए. ना लिस्टेड फोन नंबर था, कुछ भी नहीं था वॉलेट में. एंड इतने मतलब वंस अगर हम ऐसी सिचुएशन में जब पहुंचेंगे, हमारे साथ अगर ऐसा कुछ होगा, व्हाट विल बी आवर फर्स्ट थॉट? 100% आई एम नॉट गोइंग टू गेट माय वॉलेट. हमारा वॉलेट अब तो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल. सबसे पहले हम बोलेंगे इम्पॉसिबल है. बट उन्होंने क्या किया? रोंडा बर्न की डॉटर, व्हाट डिड शी डू? वो सारी चिंता, फिकर, डर, कंप्लेन ये सब भूल के वो शांत होकर एक जगह पे बैठ गई. उन्होंने आंखें खोल, अपने आंखों को बंद किया एंड अपनी वॉलेट को विजुअलाइज किया जैसे वो वॉलेट को पकड़ रखी है और उसके अंदर उनका जितना सामान था वो सबको देख रही है. तो इन वन विजुअलाइजेशन उन्होंने ये भी देख लिया कि वॉलेट भी मिल गया और उसका सारा सामान भी मिल गया. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे जब उनको अपना वॉलेट याद आया, तब उन्होंने अपने हाथ में अपना वॉलेट फील किया और उसको हर टाइम पे बहुत खुश मन से ग्रैटिट्यूड दिया कि उनको उनका वॉलेट मिल गया हर टाइम पे. शी सिंग थ्रू आउट द डे, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे जब उनको याद आया तब वो ग्रैटिट्यूड में थी. शी डिडंट गो बिलो द लाइन, शी डिडंट कंप्लेन, शी डिडंट फोकस कि उनका वॉलेट गुम गया है. शी फोकस्ड ऑन कि उनका वॉलेट मिल गया है. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, so he gave up and drove back to his farm with the wallet.
But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it. And so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that number." From 100 miles away to the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had a wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. So it's such a beautiful thing ना, ये कब का कब हुआ होगा, लेकिन आज भी सुन के एक अलग सी एक्साइटमेंट फील होती है कि वाओ, लुक एट द वे द यूनिवर्स वर्क्स. किसी ना किसी फार्मर को कहीं उसके घर के सामने मिला, लेकिन सिंस उसको उसमें कोई कांटेक्ट एड्रेस नहीं मिला, कोई नंबर नहीं मिला, तो वो अपने घर ले गए जो माइल्स अवे थे, जबकि वो उनको मिला उनकी डॉटर के घर के पास, बट इट वेंट माइल्स अवे. कभी सोचा है कि इतने दूर जाके हमें हमारी चीज वापस मिल गई? इट वेंट माइल्स अवे एंड उनको वो बहुत कोशिश किए पता करने का, उनको नहीं मिला, तो वो अपने नेक्स्ट दिन फील्ड्स में जा रहे थे, तो उनको वो बात सता रही थी कि ये वॉलेट मुझे वापस करना है, ये वॉलेट मुझे. why was he nagged? उनके मन में ऐसा विचार क्यों चल रहा था? कैन एनीबडी से उस फार्मर के मन में ऐसा विचार क्यों चल रहा था? I feel the universe was reminding him that he has to return it. Because Rhonda's daughter was in deep gratitude all the time. तो यूनिवर्स ने वो फार्मर को अच्छे से शांति से बैठने नहीं दिया. That universe didn't allow the farmer to be at peace. फिर उन्होंने वॉलेट खोला, उन्होंने देखा एक क्रिश्चियन नेम था जिसका सरनेम उन्होंने रोंडा की डॉटर के साथ मिक्स करके डायरेक्टरी में खोजा. एंड द बेस्ट पार्ट, दे आर सेइंग इट वाज एन अनलिस्टेड नंबर. डायरेक्टरी में वैसा कोई नंबर था ही नहीं, लेकिन उस फार्मर को नंबर मिला कहीं ना कहीं से. ही कॉल्ड अप and that happened to be Rhonda's husband, the daughter's father, and वहां से उनको एड्रेस मिला, and that's how he came, मतलब from 100 miles away through cannot we call these events extraordinary? ये चमत्कार है कि नहीं है? कहां से कहां कौन किसका स्ट्रिंग पुल किया, कैसे क्या हुआ, लेकिन रोंडा की डॉटर को उनका वॉलेट इंटैक्ट वापस मिल गया. एंड because she was in gratitude all the time. and यहाँ पे लिखते हैं ना, she fulfilled her part. उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने gratitude में रहना, above the line में रहना उनका काम था, तो उन्होंने अपना काम किया. तो यूनिवर्स को the gratitude had to perform magic in pulling all the strings, सारे circumstances, सारे लोगों को उनके हिसाब से चेंज करके, मोड़ तोड़ के, कैसे भी करके वो वॉलेट उन तक आना ही था. Have we not found in just one second, have we found in our lives also कितनी बार unexpected, एकदम out of the blue कुछ हो जाता है और हम बोलते हैं अच्छा ये this was so impossible, ये कैसे हो गया? So आप gratitude में थे कहीं ना कहीं. आप शायद हम आज मेरे को रियलाइज होता है कि मैं थी ग्रैटिट्यूड में, तब जाके वो सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए ताकि this came back to me. and we ourselves will realize धीरे धीरे when we hold the hands of gratitude, सब टाइम पे सारे circumstances को change होना ही पड़ेगा. Yes. The magical power of gratitude is available for you to use as well. And it has always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. So we have to learn how to use it.
ग्रैटिट्यूड और कंप्लेन एक साथ नहीं रह सकते ना। कंप्लेन करने से या चिंता डर फिकर करने से हमारी एनर्जी ऊपर नीचे हो जाती है। इन एट दैट टाइम कैन वी विजुअलाइज, कैन वी बी थैंकफुल फॉर थिंग्स हैपनिंग आवर वे? वी कैन नॉट. So it is gratitude that we need to be in all the time to get what we want. And it is like, to understand everything, we need to be calm and quiet and use our brains, use our, the wits. उसको और जितना हम अपना पैनापन बढ़ाएंगे ना अपने सोचने समझने की शक्ति का, उतना हमें मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा. Magic practice number 18. The magical to-do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list The Magical To-Do List. Choose 3 of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute of each thing believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." So, Sheetalji, will you want to explain the first and the last points? Okay, ma'am. The first point is, as usual, you get up, as soon as you get up, please count your blessings. Make a list of the blessings, write your blessings, how many of your blessings you want to write, but make sure you write why you're grateful. For example, I had a wonderful sleep because of the comfortable bed, pillow, and the magic rock. Example. So why is very important when you're writing your blessings. And at the end of each blessing, for example, if you've written 10 blessings, after each one, say thank you, thank you, thank you, and feel with emotion how grateful you are for each of your blessing. And for the last one, once you finish doing everything, the magic rock practice has to be the last thing on the bed. Before you go use your washroom, before you speak, before you, wish everybody or any and every activity, before going to bed, finish everything, take your magic rock, scan everything what has happened since morning till the end. Say, just scan everything and hold the best thing which has happened in the day. Give enormous gratitude to that and sleep well. Wow. Ma'am, You are ready to start your own sessions. That was like doing the Exactly, chapter ma'am. once I again. was also wondering this. thank you, ma'am. Thank you, Sheetal ji. Thank you so much. So today, आज का assignment हमारा क्या है? First thing, तो she's saying we have to title the list. Magical to-do list हमें ऊपर लिखना ही है. And जो भी चीज का आज हमें solution चाहिए, we need to write in that list. Any small thing, any big thing, whatever we want solutions to. जो भी हमको आज problematic लग रहा है, कैसा भी हो, चाहे हमें एक हाउस हेल्प चाहिए, चाहे हमें बच्चों के लिए एक अच्छा ट्यूटर चाहिए, हमारा ब्यूटिशनिस्ट अच्छा चाहिए, मे बी वी वांट द राइट ग्रोसरी पर्सन, आज तक अच्छा ग्रोसरी कहीं से नहीं आया, देयर इज डिफिकल्टी इन दैट, मे बी जस्ट मे बी व्हाटएवर इज, मतलब आपको जो प्रॉब्लमैटिक लगे वो आप उस लिस्ट में 10, 15, 20 जितने लिखने हैं लिख लो. And among them, you choose 3 which you want the solution to be done for you. Done for you मतलब आपको कुछ नहीं करना है, the universe will do it for you. So it is done for you. And then with each one of them, we need to spend 1 minute visualizing that ये आपके लिए हो चुका है, believing it, and with enormous gratitude in it. बहुत खुशी से, बहुत शुक्राने से आपको वो visualization करना है. So we need to do it for 3 things today from our to-do list. Thank you, Sheetal ji, so much for reading it so beautifully and explaining it also so beautifully. Thank you for the opportunity, ma'am. Thank you. Thank you, Very nice, Sheetal ji. very nice. Nice.
Thank you so much. So do we have any questions from today's chapter? किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया हो, कोई बात मतलब you need to ask, या फिर आपका कोई ऐसा problematic area है जो आपको frame करना समझ नहीं आया कि आपको लिखना क्या है? मेरा लिस्ट रेडी हो गया पढ़ते पढ़ते. Wow. Charlie ma'am, to-do list has to be written in present tense only? Like it's done? To-do list? आपको क्या काम है बस वो लिखिए. I just wrote I'm looking for a house help, so a good, reliable, honest cook. बस I didn't write कि I have. वो imagination में आपको करना है. You just have to write what you want. Okay. And उसमें मतलब आप negative words मत लिखिएगा. आप मतलब problems आपको जो चाहिए वो लिखिए, लेकिन negative words मत लिखिएगा. Yeah. Okay. Thank you. Any other question? अब इतना explanation शुरू में हो गया ना. Now अब chapters are demanding less. Everyone is understanding so easily. Some chapters are short also. बहुत कल वाला भी बहुत short है, but very very nice, very nice. And आज के रौंडापन के खुद के एग्जाम्पल से ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों को इसको और थोड़ा ग्रैटिट्यूड को पकड़ के इसमें शिद्दत रख के विश्वास रख के करना चाहिए, एंड लेट यूनिवर्स डू द रेस्ट. हमारा काम सिर्फ विश्वास करना है, फेथ रखना है, एंड मतलब ग्रैटिट्यूड करना ही करना है. बी व्हाट मे कम. जो भी आजकल लाइफ का हमारा स्टेट है, एटलीस्ट जो इस चीज के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं उसके लिए करो. बाकी यूनिवर्स विल टेक केयर. ये हमारा टेस्ट है. हमेशा एक ही बात हम बोलते हैं ना, आज अगर हम किसी भी मुसीबत में हैं तो यूनिवर्स हमें चेक कर रही है कि हम उनका हाथ और साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कंप्लेन कर रहे हैं. And ये magical Tuesday list, तो I think we can refresh every day ना, क्योंकि this is with day-to-day problems. तो कल आज आपको ये इशू है, कोई रिजॉल्व नहीं हुआ, यू कैन ऐड समथिंग एल्स. कल आज जो इम्पोर्टेंट है कल इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, कल और कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा. दैट कैन कम ऑन टॉप, दैट कैन कम इन द टॉप 3. तो ये डेली रिवीजन वाली चीज है, बट आज तो प्लीज बना लीजिए. एंड लेट अस, अब ये बोल रही है 1 minute, बट वी नो 7 minutes इज वेरी इफेक्टिव. आश्विन मैम भी बार बार बोलती है 7 minutes, बिकॉज पावर बुक में पहले लिखा है 7 minutes. 1 minute तो I think she's being very kind to us. अरे बच्चे मान जाओ, 1 minute तो कर लो. That is what she's saying. एंड जब आपको वो मतलब वो प्रॉब्लम याद आती है, तब सोल्यूशन के बारे में सोचिए, वो प्रॉब्लम के बारे में सोचिए ही मत. अगर आपको कुक चाहिए अच्छा सरिता भाभी, तो आई थिंक यू आर विजुअलाइजिंग कि आपके किचन में खड़ा है वो बंदा. मैंने उसका फोटो भी बना लिया. मेरे विजन बोर्ड पे आ गया एकदम खूब थाली में, एक थाली पकड़ के रखा हुआ है, एंड ही इज होल्डिंग ऑल टेस्टी आइटम्स. वाओ. ये दिख रहा है. दिस इज माय बंदा. आई डोंट नो इट्स वेरी क्लियर. ये बंदा है नीचे, या नीचे नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं है ना. ये बंदा थाली पकड़े हुए है, बहुत सारे टेस्टी आइटम. Wow, amazing. We would like to see it on the WhatsApp group. भाभी स्क्रीनशॉट लेके भेज दो. इसमें और कुछ और बहुत कुछ है. दिस वाज वन ऑफ द आइटम्स. ठीक है. नहीं मैम, इट्स सुपर हैंडसम कुक. या एकदम सुपर हैंडसम. एंड इवन माय हाउस हेल्प तो किसी को लगेगा कि मैं ही नहीं हूँ. शी इज सो स्मार्ट. So she is giving us so many ideas ना. कितना एक नया वो as though वो है अमेरिकन सेटअप में, लेकिन आज हमारे सेटअप में भी लगता है जैसे हमारे लिए बात कर रही है. हाँ जी, मैं तो ना शीतल जी, शालिनी जी नमस्ते. नमस्ते संदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया. मैं क्या करती थी, जब पहले मैंने मैजिक बुक की थी, सर ने बताया था, डेली करती हूँ तब से टू डू लिस्ट में, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता था ग्रेटिट्यूड भी क्या क्या करना है ना. तो मैं लिखती थी सुबह इतने बजे उठना है, तो मैंने पेरेंट्स के लिए 10 ग्रेटिट्यूड करने हैं, 10 मैंने अपनी हेल्थ के लिए करने हैं,
10 मैंने फलाने के लिए, मतलब जो भी 5 एलिमेंट्स के लिए, मतलब जो भी मैं करना था वो मैं लिख लेती थी। देन मैं लिखती थी 9 बजे मैम का सेशन लूंगी। फिर मैं रास्ते में जाते हुए किन किन बातों के लिए मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ, किन किन चीजों के लिए वो लिखूंगी। फिर दिन में मुझे क्लास लेनी है, सेशन लेना है, वो लिखती जाती थी। आप अच्छा फिर सोचते जाते हैं ना, तो ये मैं सारा लिखती थी, तो बहुत बेनिफिट होता। डेली लिख के अपने उस पे चिपका लेती थी। तो मैंने 2-3 बार शेयर किया, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला हमें शेयर कीजिए ना। तो मैं तो नहाना धोना भी उस पे टू डू लिस्ट में लिख लेती थी, कौन से सेशन के बाद नहाऊंगी। फिर आपको हो जाता है ना, अभी ये काम करना है, तो ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। दैट इज बहुत वो मैजिकल डे के लिए वो बहुत अच्छा फिट होता है। आपका जो शेड्यूल है फॉर अ डे, इट इज अमेजिंग। अमेजिंग। मैम ऐसे प्रैक्टिशनर्स शेयर करते हैं ना, वी लर्न सो मच। कि रोंडा बोल रही है उसकी हदें, वो तो सिंपल बोल रही है, उसकी हदें भी पार कर लेते हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर योर शेयरिंग। एक्चुअली वी लर्न। मैम मेरा भी ना ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद, मैग्निफिसेंट आउटकम लिखने के बाद मेरा मैजिकल टू डू लिस्ट होता है। एंड एवरी डे नेक्स्ट मॉर्निंग आई रीचेक कि कितना हो गया, और ऑलमोस्ट 90% टिक 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 ही होता है। वाओ वाओ, सुपर। इसमें उन्होंने चैप्टर में एक लाइन लिखा था ना, इट इज पावरफुल टू इवन राइट योर व्हाट यू वांट इन द मैजिकल टू डू लिस्ट। वो उसमें लिख देना भी बहुत पावरफुल होता है। चलो we do the clapping or anything else. शालिनी मैम, मेरे को भी पूछना है कुछ। आप बोलिए ना। को पूछना है कि हम जैसे परसों राजस्थान जा रहे हैं सालासर, तो मैंने ना अभी टू डू लिस्ट बनाई है अपनी। तो मैंने लिखा है कि मुझे थोड़ा फ्लाइट से थोड़ा फोबिया है, तो अभी से मैंने लिख दिया कि थैंक यू पायलट फॉर स्मूथ लैंडिंग। तो इट्स इट ओके? और मैंने लिखा है कि हाँ ठंड बहुत ज्यादा है, तो मैंने लिखा थैंक यू क्लाइमेट ऑफ राजस्थान फॉर प्लेजेंट वेदर, थैंक यू फॉर फूड, हाँ थैंक यू फॉर हेल्दी फूड एंड वाटर। तो ये चल जाएगा ना मतलब? यस 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 यस, ओके थैंक यू। And be very grateful to the winter season ना। ओके फाइन, Be ओके। very grateful कि we have seasons। अरे विंटर्स भी कितना मस्त होता है, विंटर्स में इतनी गरम गरम कपड़े पहनने मिलते हैं। I mean be grateful so that then when you are grateful to winters, it will not कहीं से आपको डराएगा नहीं। और आप जब कपड़े रख रहे हो, आपका बैग पैक कर रहे हो, देन बी ग्रेटफुल फॉर द विंटर सीजन। आप जब भी आपको फ्लाइट का याद आता है कि आप टिकट्स देख रहे हो, तभी तब आप व्हाट यू वांट उसके लिए सोल्यूशन के लिए ग्रेटफुल रहिए। ओके फाइन फाइन, थैंक यू सो मच। आप लैंड कर चुके हो सेफली एंड यू हैव रिटर्न्ड बैक हेल एंड हार्टी एंड सेफली बैक टू कोलकाता। दिस इज व्हाट यू कैन। हाँ वो भी हम लिखते बोलते हैं वो हम, राइट राइट। हाँ, जैसे हम अभी बोधगया गए थे 16 मई, बहुत पीक गर्म रहता है, बिहार था, पर मुझे पहली बार है ना गर्म नहीं लगी। क्या पता मैंने गर्म को इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया क्या, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो मेरी जब मेंटोर ने पूछा ना कि सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैंने ना एक छोटा सा एक्सपीरियंस यही शेयर किया कि मुझे इतनी गर्मी में भी गर्म नहीं लग रही थी, क्या रीजन था। तो उन्होंने बताया वहाँ की एनर्जी वैसे थी, बोधगया गए थे हम तो बट ये हो सकता है औरों को गर्मी लगी, तो इवन व्हेन यू आर ग्रेटफुल आपको यू विल रियलाइज कि अरे और तो गरम गरम कर रहे हैं, मेरे को नहीं गरम लग रही है, वो होता है। थैंक यू। चलो today also let's clap with for the joints. Should we? Yeah. Or do you want the normal clap? नहीं, let's do for the joints. अच्छा ही है ना, we are doing Shaila's yeah, I've started for 1 minute. Okay, let's start. All for our healthy joints. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Every joint. जो joints हमें पता भी नहीं है ना, जो जहाँ मुड़ता नहीं है, we don't even realize वहां भी हड्डियां जुड़ती है। Even your jaws, आपके मुंह भी हिल रहा है, जबड़ा हिल रहा है ना, यहाँ भी joint है। हर हड्डी में, हर स्कल में छोटे छोटे बोन्स के टुकड़े ज्वाइन होते हैं। एवरी जॉइंट के लिए थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हर जॉइंट जो स्पाइन में एक एक रिब्स निकलते हैं, उन सब एक एक जॉइंट्स के लिए मेरा स्पाइन इतना फ्लेक्सिबल है। थैंक यू, थैंक यू। हिप बोन जॉइंट, नी जॉइंट, Thank you, thank you, thank you, thank you. एंकल जॉइंट, टो में जितने जॉइंट हैं,
Thank you. Thank you. Now rub your hands. Put it on. Just energize yourself. I am a powerful soul. मैं एक परम शक्तिमान आत्मा हूँ. I am fit, fine and healthy. I am a money magnet. All my relationships are pure and healthy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Chalo, bye bye. Have a blessed day. See you all tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shalini ji. Thank you, Sarita ji, so much. Thank you. 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 Thank you.